नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, दैट इज इंडियाज नॉर्थ ईस्ट रीजन। क्यों हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज नागालैंड के अंदर 2015 में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नागा ग्रुप है NSCN, उसके बीच में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ था और वो अभी न्यूज में था। बिकॉज ऑफ दैट हम इस टॉपिक को देख रहे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन से हैं? सिक्किम प्लस 7 सिस्टर्स। तो 7 सिस्टर्स में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। सो दिस 8 स्टेट, इसको हम इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन कहते हैं। आउटलाइन, प्रेजेंट कंटेक्स्ट में नागा पीस एग्रीमेंट क्या था, नॉर्थ ईस्ट रीजन का इंपॉर्टेंस क्या है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में व्हाट इज द नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, व्हाट इज द रीजंस फॉर कन्फ्लिक्ट इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, सॉल्यूशन क्या है कन्फ्लिक्ट का, नॉर्थ ईस्ट रीजन का रिलेशन क्या है इंडिया के दूसरे पार्ट से। तो ये एक वीडियो है नागा पीस एग्रीमेंट का, इसको हम देखते हैं फिर आगे प्रोसीड करते हैं। Naga Accord has been trending for a few days now. This is probably India's oldest insurgency that you can see. It started off in 1918 when the Naga Club was formed. And when the Simon Commission arrived in India in the late 1920s, it's famously said the Nagas told them to leave them alone. In 1946, A.Z. Fizzo, who's also known as the father of the Nagas, formed the Naga National Council. On 14th August 1947, he decided to call for the Naga independence. Naga insurgency thus came with the birth of India, as we know, on 15th of August 1947. The first breakthrough year was 1975, when A.Z. Fizzo's NNC, the Naga National Council, signed an agreement with the government of India in Shillong. But three big leaders of this, Isaac, Muiwa, and Kaplang, decided to break away, and they formed the NSCN. But even as NNC struck an agreement with the government, NSCN, thus formed, began the bloody struggle for independence. Again, hundreds of people started dying, and Nagaland remained in a state of alarm. It was in 1997 when NSCN decided to sign an agreement deal with the government. It was a landmark deal because it was decided that there will not be any counter-insurgency move by the government and the army against NSCN, and in return, they will not indulge in any kind of terrorist activities. Here, Muiwa and Isaac were part of it, but Kaplang decided to step aside. And now NSCN was split in two parts. NSCN IM, which is Isaac and Muiwa, and NSCN K, which is Kaplang. Between 1997 and 2015, there were several rounds of talks with the government of India and NSCN IM. But Kaplang Win continued with their terror activities. Over the years, NSCN Kaplang's hold over Nagaland also decreased, with the Naga, Hoho, and the church all coming together and seeking peaceful resolution to this entire problem. NSCN IM became the main center for the talks, and later on in 2015, a framework agreement was signed with Prime Minister Narendra Modi, where not only NSCN IM, but several other groups also joined in to ensure that talks can move in the right direction. And the Naga Accord, which we are talking about right now, would be the culmination of all these efforts into a final settlement of the Naga issue. But what are the key demands of the Naga nationalists? The first demand is a separate Naga constitution and Naga flag. A separate constitution would mean that Indian constitution would not be effective. A separate flag would mean that Indian national flag will not be effective, or there would be dual flag system. Talks are on that as well. The second demand is of a greater Nagaland, which would mean all the areas of the Naga Hills, whether it's in Manipur, it's in Arunachal Pradesh, in Assam, or entire of Nagaland, would be brought under the single government. This has opposition from the respective states. Manipur doesn't want to part away with its territory, Assam doesn't want to part away with its territory, and of course Arunachal too doesn't want to part away with their territory. The reason why the talks are taking so long and a lasting political solution is still so far away probably is because of the border issues which the greater Nagaland demand would face from the other states in the northeastern region. That's why the last few days of the talks we've seen protests emerge in Assam, in Arunachal, in Manipur, wherein they say that they will not give an inch of their territory. One of the solutions which are being talked about is, of course, being autonomous districts, which will be in the Naga-dominated areas of all these states.
But even then, there is a problem. The state government, as well as the various indigenous groups, will not be too eager to cede control of these autonomous councils completely to the Naga tribes. तो नागा कन्फ्लिक्ट को समझते हैं। अब ये कन्फ्लिक्ट कैसा है कि नागा ट्राइब है जो नागालैंड में रहता है, और इस ट्राइब के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन है। अब ये ट्राइब नागालैंड में मेजोरिटी है, उसके बाद मणिपुर के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, आसाम के अंदर है एंड म्यांमार के अंदर है। तो इनका एक ग्रुपिंग है NSCN, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ ग्रेटर नागालिम और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिम। इनका ऐसा डिमांड है कि जिस जिस रीजन पे नागास रहते हैं वो सारे रीजन को यूनाइट किया जाए और उस रीजन को ग्रेटर नागालिम कहा जाए। अब वो कौन सा रीजन होगा? म्यांमार का हिल डिस्ट्रिक्ट, आसाम का हिल डिस्ट्रिक्ट, अरुणाचल प्रदेश का हिल डिस्ट्रिक्ट, नागालैंड तो है ही, और ये ग्रेटर नागालैंड बनेगा। वो या तो सेपरेट कंट्री हो या इंडिया के अंदर ही हो, बट उसको ऑटोनॉमी मिले। तो इंडिया के अंदर है कि जब ऑटोनॉमी मिलेगा तो उसको इन्होंने कहा कि शेयर सोवरनिटी होना चाहिए। उनके पास भी कुछ पावर हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी पावर हो। से फॉर एग्जांपल जैसे जम्मू एंड कश्मीर था, मेजर पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास था, बट JNK भी ऑटोनॉमस था। बट लास्ट ईयर 5 अगस्त को हमने जम्मू एंड कश्मीर से ऑटोनॉमी ले लिया, तो ऐसा नागालैंड में होना चाहिए। दूसरा उनका डिमांड है कि सेपरेट उनका फ्लैग होना चाहिए, सेपरेट उनका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। बट अगर हम नागालैंड को सेपरेट फ्लैग देंगे तो कल कोई और स्टेट डिमांड करेगा, उनका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन होगा, तो विच मीन्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो वहां पे निल हो जाएगा। तो ये नागा का जो डिमांड है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिजिबल डिमांड ही नहीं है। दूसरा एक नागा का डिमांड है कि जहां जहां पे भी नागाज रहते हैं उस एरिया को यूनाइट करके ग्रेटर नागालिम बनाया जाए और ग्रेटर नागालैंड बनाया जाए। चलो हम आसाम में से, मणिपुर में से, अरुणाचल प्रदेश में से जहां जहां पे नागा रहते हैं वो एरिया निकाल के हम नागालैंड के साथ मर्ज भी कर दें, पर म्यांमार के साथ हम कैसे एरिया ले सकते हैं? वो तो एक अलग कंट्री है। तो ये तो कंप्लीट इलॉजिकल डिमांड है। तो ये पूरा नागा कन्फ्लिक्ट है। तो ये पूरा कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है 1881 में, एनेक्सेशन ऑफ नागा हिल्स बाय ब्रिटिश कॉलोनाइजर, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नागा क्लब 1918 नागा फ्रीडम के लिए, देन NNC नागा नेशनल काउंसिल। इन्होंने 1947 में डिसाइड किया कि हम इंडिया का पार्ट नहीं बनेंगे, हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान आया था, जिसको ऑफिशियल हमने कलर दिया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। सो माउंटबेटन प्लान में ये कहा गया कि ब्रिटिश इंडिया 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, एक इंडिया, दूसरा पाकिस्तान। सेकंड जो प्रिंसली स्टेट है उनके पास ऑप्शन है, इधर इंडिया को ज्वाइन करें या पाकिस्तान को ज्वाइन करें या फ्रीडम रहे। तो नागालैंड ने डिसाइड किया कि वो फ्री रहेगा, वो इंडिया को ज्वाइन नहीं करना है उसको। देन 1952 में इंडिया ने आर्म फोर्सेस को नागालैंड में भेजा। 1962 में नागालैंड और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एग्रीमेंट होता है, नागालैंड इंडिया का पार्ट बनता है। सीज फायर एग्रीमेंट होता है इंडिया के बीच में, नागा रिपेल के बीच में। तो इंडियन आर्मी फायर नहीं करेगी नागा रिबेल्स के ऊपर, नागा रिबेल्स भी वो भी वारफेयर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। सीज फायर 1972 में ब्रेकडाउन होता है। शिलोंग एकॉर्ड साइन होता है NNC और इंडिया के बीच में। इंडिया मीन सेंट्रल गवर्नमेंट। NNC के अंदर फ्रैक्शन बन जाता है, तो उस NNC से कुछ लीडर निकल के और वो एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम होता है नेशनलिस्ट सोशल काउंसिल ऑफ नागालैंड। इसके अंदर अगेन 2 फ्रैक्शन बनता है, एक इशाक मोवैया है और दूसरा खाफलांग है। देन 2015 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट एंड नागालैंड के बीच में एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन होता है, और ये फ्रेमवर्क एग्रीमेंट के जितने भी डिटेल होते हैं ये सीक्रेट होता है, विच मीन्स इस एग्रीमेंट में क्या डिसाइड हुआ है, नहीं डिसाइड हुआ, ये बाहर रिलीज नहीं होता है। अब 2020 में कुछ नागा लीडर इस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को लीक करते हैं और वो कहते हैं कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अग्री किया था कि वो हमें सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन देगा, सेपरेट फ्लैग देगा।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको डिनाई किया, उसने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये अभी लेटेस्ट कंट्रोवर्सी है। तो नागा कन्फ्लिक्ट जो है कि उन जहां जहां पे भी नागा रहते हैं उनको एक सेपरेट रीजन चाहिए, आइदर इन इंडिया और सेपरेट फ्रॉम इंडिया। इसमें आपको इनके डिमांड को समझना होगा। अगर एक बार आप इनके डिमांड को समझ जाओगे तो आप ये पूरे इशू को समझ पाओगे। तो एनएससीएन एक ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। ये एक लौता ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, बट दिस इज वन ऑफ द पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका एक डिमांड है ग्रेटर नागालिम का। ये नागालैंड के आप मैप को देखो, जहां पे रेड कलर से मैं मार्क कर रहा हूं, ये रीजन है नागालैंड का, ये आसाम का रीजन, ये अरुणाचल प्रदेश का रीजन, ये म्यांमार का रीजन और ये मणिपुर का रीजन। तो ये लोग ऐसा कहते हैं कि जो नागालैंड स्टेट है उसके साथ ये सारे रीजन को मर्ज करो। मैं दूसरे कलर में ड्रॉ करता हूं तो आपको ज्यादा आइडिया आएगा। तो ये वाला जो डैश पोर्शन है, तो एनएससीएन का ये डिमांड है कि अभी जो रेड कलर में नागालैंड है उसको हमें एक्सपांड करके, और जो डैश पोर्शन और जो ब्लू कलर से मैं आउटलाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इतना नागालैंड होना चाहिए। तो अभी जो नागालैंड का एरिया है वो 8 टाइम ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। सो दिस इज देयर डिमांड ऑफ ग्रेटर नागालैंड। अब सपोज करो अरुणाचल प्रदेश से कुछ एरिया हमने नागालैंड को दे दिया, आसाम से कुछ एरिया को दे दिया, मणिपुर से दे दिया। अगेन ये भी डिफिकल्ट है क्योंकि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तीनों ने ऐसा कहा है कि हम अपने टेरिटरी का 1 इंच भी नागालैंड को नहीं देंगे। तो समहाउ फिर भी हम इनको कन्विंस करते हैं और इनको इसमें से कुछ एरिया दे देते हैं। बट व्हाट अबाउट म्यांमार? म्यांमार से कैसे हम एरिया दे सकते हैं, क्योंकि वो तो एक सेपरेट कंट्री है। वो तो बहुत डिफिकल्ट है। तो ये सबसे पहले डिमांड ही फिजिबल नहीं है ग्रेटर नागालैंड का। दूसरा, इनको शेयर सोवरेनिटी चाहिए कि ये पूरे रीजन को ऑटोनोमस बना दो। ऑटोनोमस बनाने के बाद ये जो रीजन होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर ही रहेगा बट ऑटोनोमस होगा, जैसे जम्मू एंड कश्मीर था। दूसरा, इनको सेपरेट नागा नेशनल फ्लैग चाहिए। तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट डिमांड है क्योंकि कल से फिर त्रिपुरा भी डिमांड करेगा, मेघालय भी डिमांड करेगा, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र सब डिमांड करेगा। ऐसे हम कैसे कर सकते हैं? और इनको नागा यजाबो चाहिए। तो यजाबो मीन्स नागा का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। देन व्हाट विल हैपन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ऑलरेडी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 371 के अंदर हमने नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन दिया ही है। सो व्हाट एल्स दे नीड? दे नीड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ इट इज पॉसिबल? तो इनको हम 371 के अंदर एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट दे ही रहे हैं। तो ये एनएससीएन का की डिमांड है और ये डिमांड फिजिबल ही नहीं है। ये डिमांड फुलफिल करना बहुत डिफिकल्ट है। नाउ इसके अंदर कौन से एक्टर्स इन्वॉल्व है, स्टेक होल्डर्स कौन से हैं? तो 4 इसके अंदर स्टेक होल्डर्स हैं। ये नागालैंड स्टेट है जैसा मैंने आगे बताया था, और ये इंटरनेशनल बाउंड्री है। तो पहला स्टेक होल्डर है यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पे। तो यूनियन गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है? तो वो इस रीजन को स्टेटस को रखना चाहता है, जैसा है वैसा रहने दो, क्योंकि नागालैंड स्टेट है, उसकी बाउंड्री को हम चेंज नहीं कर सकते। नेबरिंग स्टेट अग्री नहीं कर रहे हैं। दूसरा, यूनियन गवर्नमेंट ने एक और प्रपोजल ऐसा रखा था कि आसाम के अंदर से ये पूरा आसाम है, तो आसाम के अंदर ये वाला रीजन नागा डोमिनेटेड है, तो क्यों नहीं इस रीजन को हम थोड़ा ऑटोनॉमी दे दें। जो नागा पीपल है उनको हम वहां पे एग्जीक्यूटिव राइट दे दें, लेजिस्लेचर राइट दे दें, उनके लिए रीजन वो रिजर्व रखें। तो ये एक सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन अगेन अब प्रॉब्लम इसमें ये है कि आसाम के अंदर जो दूसरे ट्राइब है वो क्यों ऐसा कहेंगे कि आप नागा को यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट दे दो, तो उनको तो नुकसान होगा। तो एट बेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है कि नागास जो दूसरे स्टेट में है, मणिपुर के अंदर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, आसाम के अंदर है, उनको वो ऑटोनॉमी दे सकता है विदाउट रीड्रॉइंग मैप। इंडिया को ना तो स्टेट्स के बाउंड्री को चेंज करना है और इंटरनेशनल बाउंड्री चेंज करने का तो कोई ऑप्शन ही अराइज नहीं होता है। सो यूनियन गवर्नमेंट जैसा है वैसा ही रहने देना चाहता है। एट बेस्ट
जो नागा डोमिनेटेड एरिया है दूसरे स्टेट में, उनको ऑटोनॉमी दे सकता है विदाउट रीड्रॉइंग मैप ऑफ इंडिया। नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट का क्या इंटरेस्ट है, उसको स्टेटस को ही चाहिए कि नागालैंड स्टेट जो है उस पे नागालैंड स्टेट गवर्नमेंट का अथॉरिटी है, बाकी जगह तो अथॉरिटी नहीं है, तो उसको स्टेटस को चाहिए, जैसा सिचुएशन है वैसा रहने दो। नेशनलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड एनएससीएन, वो आर्म्ड इंसर्जेंट है, दे आर फाइटिंग विथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि उनको ग्रेटर नागालैंड बनाना है, ग्रेटर नागालैंड बनाना है, और वो एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चलाते हैं। तो ये एनएससीएन का इंटरेस्ट है। देन एक ग्रुप है एनएनपीजी, नागालैंड नेशनल पॉलिटिकल ग्रुप, ये सिविल सोसाइटी का ग्रुप है। जो लोग भी आर्म्ड ग्रुप नहीं है उन सबका एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है एनएनपीजी, और ये लोग चाहते हैं कि नागालैंड का सॉल्यूशन निकले, बट पीसफुल वे में इसका सॉल्यूशन निकले, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के ही नागालैंड का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। तो 4 स्टेक होल्डर है यहाँ पे, बट ये 2 मेजर स्टेक होल्डर है, एक है यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा है एनएससीएन। नाउ नागा पीस एग्रीमेंट का 2015 से क्या हो रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनएससीएन का एक फैक्शन है इसाक मोइया, उसके साथ एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया, बट वो सीक्रेट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसके नीति ग्रिटी को रिलीज नहीं किया था। जुलाई 2019 में आर.एन. रवि को नागालैंड का गवर्नर बनाया जाता है। आर.एन. रवि पहले इंटरलॉक्टर थे, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव थे नागा के साथ बात करने के लिए। अक्टूबर 2019 में आर.एन. रवि ने कहा कि एनएससीएन आईएम इसका प्रोक्रास्टिनेटिंग एटीट्यूड है, इसको कोई सेटलमेंट चाहिए ही नहीं। ये क्या इसको पता है कि इसका डिमांड जो है वो वैलिड नहीं है, डिमांड फुलफिल नहीं होने वाला है, तो इनको कोई सोल्यूशन नहीं चाहिए, तो ये जानबूझ के टॉक को डिले करते हैं। मैं एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहा था नागालैंड के बारे में, तो उसमें एक जर्नलिस्ट नागालैंड में जाता है और वो बोलता है कि आप मुझे ये बताओ एनएससीएन के कितने फैक्शन हैं, कितने डिवीजन हैं। तो वहां का लोकल उसको कहता है कि आप एक काम करो, आप यहाँ पे एक पान का शॉप ओपन कर दो और फिर आपको पता चल जाएगा एनएससीएन के कितने फैक्शन हैं। आज एनएससीएन आईएम वाले लोग आपसे पैसे मांगने आएंगे, जो हफ्ता लेना होता है वैसे, दूसरे दिन एनएससीएन खापलांग वाले आएंगे, थर्ड कोई और ग्रुप आएगा, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने ग्रुप है वहां पे। दूसरा, एनएससीएन को आर.एन. रवि ने एक्यूज किया कि इसने कुछ इमेजिनरी कंटेंट फ्रेमवर्क एग्रीमेंट का रिलीज कर दिया था। जैसे एनएससीएन ने ऐसा कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अग्री किया है कि उनको सेपरेट फ्लैग मिलेगा, उनको सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा, और आर.एन. रवि ने कहा कि ऐसा हमने कभी भी अग्री नहीं किया था, हम कैसे सेपरेट फ्लैग दे सकते हैं, कैसे सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन दे सकते हैं। आर.एन. रवि ने एनएससीएन को आर्म्ड गैंग कहा जब वो वहां के चीफ मिनिस्टर को लेटर लिख रहे थे। तो एनएससीएन का ऐसा कहना है कि आप आर.एन. रवि को वहां से निकालो, और एनएनपीजी ग्रुप है उसका कहना है कि आर.एन. रवि को आप वहां पे रखो। तो ये अभी तक का टाइमलाइन है 2015 से। अब ये तो पूरा हो गया नागालैंड का। अब हम इस कंटेक्स्ट में समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट रीजन का इंपॉर्टेंस क्या है। कोई भी रीजन जब इंपॉर्टेंट होता है तभी वहां पे डिस्प्यूट होता है। जैसे राजस्थान डेजर्ट में देखो आप, डिस्प्यूट नहीं है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, कश्मीर को लेकर डिस्प्यूट है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में डिस्प्यूट है। तो जो रीजन इंपॉर्टेंट होता है उसको लेके डिस्प्यूट होता है। तो नॉर्थ ईस्ट का इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन भी है वहां पे, रिसोर्सेज भी है। अब स्ट्रेटेजिक लोकेशन कैसे, आप अगर नॉर्थ ईस्ट रीजन को देखो, दिस इज एनईआर, भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, नेपाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, बांग्लादेश के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है। तो 5 कंट्री के साथ इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहा है। अगर इंडिया यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं करता है, इंडिया यहाँ पे प्रॉपर विजिलेंस नहीं रखता है, तो दूसरे कंट्री के लोग आके यहाँ पे यहाँ के ट्राइब को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और फिर वो लोग इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट वर्क करेंगे। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट के थ्रू इंडिया म्यांमार में एंटर हो सकता है, म्यांमार से इंडिया थाईलैंड में एंटर हो सकता है। साउथ ईस्ट एशिया वर्ल्ड का वन ऑफ द रीजन है जो अभी डेवलप कर रहा है, और इसका डेवलपमेंट रेट भी काफी अप्रिशिएबल है। सो
साउथ ईस्ट एशिया के अंदर इंडिया को एंटर होना है तो नॉर्थ ईस्ट रीजन ऐसे गेटवे की तरह है, बिकॉज नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर कल्चरल सिमिलैरिटी है साउथ ईस्ट एशिया की तरह। नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी है। रिसोर्सेस यहाँ पे क्या क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है, हिल रीजन है, रिवर का रिसोर्सेस है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं थ्रू वाटर। टी का प्लांटेशन है, फॉरेस्ट रिसोर्सेस है, हॉर्टिकल्चर है, पेट्रो हॉर्टिकल्चर मीन्स स्पाइसेस है, देन वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है एंड मिनरल्स है। तो ये रीजन काफी रिसोर्स रिच रीजन है और यहाँ पे बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर है कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर है, एजुकेशन बेटर है, यहाँ के जो लोग हैं वो इंग्लिश बेटर एक्सेंट में बोलते हैं, तो जिसकी वजह से बीपीओ इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री यहाँ पे हम डेवलप कर सकते हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन का इंपॉर्टेंस है। कोई भी रीजन में जब डिस्प्यूट हो, आप ये देखना कि उस रीजन का इंपॉर्टेंस क्या है। अगर वो इंपॉर्टेंट होगा तभी डिस्प्यूट होगा, इंपॉर्टेंट नहीं है तो कोई डिस्प्यूट नहीं होगा। नोबडी इज अ डैम इंटरेस्टेड। नाउ नॉर्थ ईस्ट वन ऑफ द मोस्ट हॉटस्पॉट रीजन है इंडिया का। वहां पे कन्फ्लिक्ट ऑफ वन और अदर नेचर अकर होता है। तो कन्फ्लिक्ट के पीछे का रीजन क्या है, तो 4 रीजन है। फर्स्ट, कुछ ग्रुप है उनको वहां पे डिस्टिंक्ट होमलैंड चाहिए, नेशन चाहिए। जैसे नागालैंड के अंदर ग्रेटर नागालिम है, वैसे ही वहां पे कुकी ट्राइब का मूवमेंट चल रहा है, बोडोस का मूवमेंट चल रहा है, बोरोस का मूवमेंट चल रहा है, मीती ट्राइब्स का मूवमेंट चल रहा है। तो डिस्टिंक्ट होमलैंड है, अलग कंट्री चाहिए सबको। दूसरा है एथनिक कन्फ्लिक्ट है, से ट्राइब ए का डिस्प्यूट है ट्राइब बी के साथ, ट्राइब बी का डिस्प्यूट है ट्राइब सी के साथ, और ये सारे लोग इस रीजन में डोमिनेट करना चाहते हैं, तो एथनिक कन्फ्लिक्ट है। थर्ड, सब रीजनल कन्फ्लिक्ट है, उनको सेपरेट स्टेट चाहिए या ऑटोनॉमी चाहिए। जैसे आसाम के अंदर जहां पे बोडोस ट्राइब रह रहे हैं, उनको वहां पे एक सेपरेट स्टेट चाहिए, बोडोलैंड चाहिए। वैसे ही जहां पे बोरोस रहते हैं तो उनको बोरोलैंड चाहिए, तो सेपरेट स्टेट और ऑटोनॉमी। देन सन ऑफ द सोइल का कंसेप्ट है, जैसे मैं यहाँ का लोकल हूँ, तुम लोग यहाँ के आउटसाइडर हो, तो लोकल को पहले प्रेफरेंस मिलना चाहिए, आउटसाइडर को यहाँ से भगा देना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट में नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट 4 तरीके से है। सम ग्रुप्स आर डिमांडिंग फॉर सेपरेट स्टेट और ऑटोनॉमी। सेकेंड, सम ग्रुप्स आर डिमांडिंग उनको अलग कंट्री मिल जाए। थर्ड, एथनिक कन्फ्लिक्ट है। एंड फोर्थ, लोकल वर्सेस आउटसाइडर, सन ऑफ सोइल का कन्फ्लिक्ट है। नाउ नॉर्थ ईस्ट में कन्फ्लिक्ट है, इंसर्जेंसी है, उनके पीछे का रीजन क्या है? तो एक रीजन है हिस्टोरिकल रीजन है। वहां पे ब्रिटिशर ने रूल किया, उसके बाद फॉर ए ब्रीफ पीरियड जापानीज वहां पे आए थे, उन्होंने रूल किया, प्लस डिफरेंट वहां पे किंगडम था, डिफरेंट ट्राइबल्स थे। तो हिस्टोरिकल रीजन है कन्फ्लिक्ट का कि वहां पे कोई एक स्टेबल रूलर नहीं हुआ, मल्टीपल रूलर्स वहां पे हैं। देन इंडिया से ये रीजन ज्योग्राफिकली भी आइसोलेटेड है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। अगर मैं आपको इसको मैप में दिखाऊं, यहाँ पे एक ये नैरो कॉरिडोर है, ये वाला इंडियन मेनलैंड को ये नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट करता है, तो इसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर करते हैं। 38 किलोमीटर का विड्थ है और इंडियन मेनलैंड को नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्ट करता है। कितनी बार ऐसा होता है कि नॉर्थ ईस्ट में कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है तो जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं इस पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही डिस्टर्ब कर देते हैं, तो जिससे ये पूरा डिस्कनेक्ट हो जाता है नॉर्थ ईस्ट रीजन इंडिया के मेन लैंड से। तो ज्योग्राफिकली भी आइसोलेटेड है, हिस्टोरिकली भी आइसोलेटेड है। आप जैसे नॉर्थ ईस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे हमारे हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में, तो बहुत कम इंफॉर्मेशन वहां पे है। देन माइग्रेशन है कि मल्टीपल ग्रुप्स यहाँ पे माइग्रेट करके आए, और जब माइग्रेशन स्पेशली बंगाली स्पीकर जब बांग्लादेश बना या बंगाल का डिवीजन हुआ, हिंदी स्पीकर, तो ये सब यहाँ पे माइग्रेट होके आए, और माइग्रेशन की वजह से ट्राइबल नॉन ट्राइबल के बीच में कन्फ्लिक्ट है, लोकल वर्सेस आउटसाइडर के बीच में कन्फ्लिक्ट है। देन फेडरल डिस्प्यूट है, यहाँ के जो स्टेट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्यूज करते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनके इंटरनल प्रॉब्लम में इंटरफियर करता है, इनके इंटरनल
पावर डायनामिक को डिस्टर्ब करता है। देन डिफरेंट कल्चर है, इंडिया के दूसरे पार्ट से यहाँ पे डिफरेंट कल्चर है। सो एज अ रिजल्ट जब नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के दूसरे पार्ट में जाते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो मैं आपको अपना पर्सनल कितने एग्जांपल बताऊंगा कि दिल्ली में इनको अलग अलग निकनेम से बुलाया जाता है। अभी अप्रैल में जब लॉकडाउन लगा था तो एक नॉर्थ ईस्टर्न या टिबेटियन, आई डोंट नो वो कौन थी, तो एक वेजिटेबल के लारी पे मैं गया था, मुझे भी वेजिटेबल लेना था, उनको भी लेना था। तो उस समय ऐसा था कि चाइना को लोग कैसे रिस्पॉन्सिबल कंसिडर करते थे कोरोना वायरस के लिए। तो वो लेडी जब वेजिटेबल लेने गई तो वो शॉपकीपर ने कहा कि नहीं नहीं आप इसको टच मत करो, मैं आपको देता हूँ। और बाकी जो दूसरे लोग थे वो वहां से पिक कर रहे थे वेजिटेबल्स, वो लेके जा रहे थे। सो ये ऐसे रेसिज्म हुआ। और ऐसे आप स्कूल में, कॉलेजेस में, मार्केट में देखो तो वन और अदर वे में उनको एक्यूज किया जाता है, वन और अदर वे में उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। देन एक सेंस ऑफ एलिनिएशन है, उनके ऊपर अटैक होता है। एक नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने एक बाइट दिया था, you call me Chinese, you call me Nepali, but I am Indian and in my own country I am confused कि मैं Chinese हूँ, मैं नेपाली हूँ, मैं Indian हूँ। In this way we treat them and this is a completely wrong thing. देन आफ्सा वहां पे एप्लीकेबल है। आफ्सा का फुल फॉर्म क्या है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। अब जैसे आप किसी पीसफुल रीजन में है, से दिल्ली में है या अहमदाबाद में है, तो यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन देती है। जहां पे डिस्टर्ब रीजन होता है, जम्मू एंड कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट रीजन, वहां पे आर्मी सिक्योरिटी को मेंटेन करती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करती है। सेम पुलिस को अगर आपको अरेस्ट करना है तो पुलिस के पास कोर्ट का ऑर्डर होना चाहिए जिसको वारंट कहते हैं। पुलिस को आपको आपके प्रीमाइसेस को सर्च करना है तो पुलिस के पास सर्च वारंट होना चाहिए। बट जहां पे आफ्सा एप्लीकेबल है, आर्मी किसी को भी सर्च कर सकती है, किसी को भी अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी वारंट। जहां पे आफ्सा एप्लीकेबल है तो पुलिस फायर ओपन कर आर्मी फायर ओपन कर सकती है विदाउट गिविंग वार्निंग। जहां जो पीसफुल रीजन है वहां पे आर्मी को फायर ओपन करना है तो दे हैव टू गिव वार्निंग। तो आफ्सा जहां पे एप्लीकेबल है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर बहुत एलिगेशन लगे हैं, ह्यूमन राइट वायलेशन के, रेप के, लॉ एंड ऑर्डर को वायलेट करने का, टॉर्चर का। तो ये भी एक रीजन लेके आता है कि वहां के लोकल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट हो गए हैं। हमें किसी भी केस में ट्राई करना चाहिए कि इंडियन आर्मी को या हमारे डिफेंस फोर्सेस को इंटरनल कन्फ्लिक्ट में यूज ना करें। हम वहां पे पुलिस को यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि अगर हम इंडियन आर्मी को यूज करते हैं और कुछ चीज गलत हो जाता है तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? इंडियन आर्मी इज रिस्पॉन्सिबल, सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल। देन एक्सटर्नल, चाइना, म्यांमार, नेपाल, वहां के कुछ ग्रुप को इन्फ्लुएंस करता है, इवन बांग्लादेश कुछ ग्रुप को वहां पे इन्फ्लुएंस करता है। तो दूसरे कंट्रीज भी यहाँ पे इंटरफियर करते हैं। कुछ ऐसे ग्रुप है जो इंडिया के अगेंस्ट वर्क करते हैं, वो म्यांमार में चाइना से ऑपरेट करते हैं। फिर यहाँ पे बॉर्डर पोरस है, पोरस बॉर्डर विच इज इजिली पेनिट्रेबल। हिली रीजन है, माउंटेनस रीजन है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, यहाँ पे फ्लड प्लेन है, जिसके वजह से इजिली कोई भी पेनिट्रेट कर सकता है। देन जो आर्म्स यहाँ पे ग्रुप्स हैं उनके पास आर्म्स का एक्सेस है, इलीगल आर्म्स का एक्सेस है, बिकॉज इलीगल आर्म का ह्यूज सप्लायर इंटरनेशनली वो थाईलैंड है। तो थाईलैंड यहाँ से पास में लोकेटेड है, तो बहुत सारे इलीगल आर्म्स यहाँ पे स्मगल होके आते हैं। जैसे अभी मेरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट है और मेरे पास गन नहीं है तो मैं इजिली उनके साथ फाइट कर पाऊंगा, लेकिन अगर मेरे पास गन है तो मैं बहुत स्ट्रांगली उनके साथ फाइट कर पाऊंगा। तो आर्म्स की वजह से प्रॉब्लम और ज्यादा एग्रीवेट हो जाता है। नाउ नॉर्थ ईस्ट में जो कन्फ्लिक्ट है उस कन्फ्लिक्ट का सोल्यूशन हम कैसे लेके आ सकते हैं? तो पहला सोल्यूशन है डेमोक्रेसी। लोग वहां पे क्या डिजायर करते हैं उस हिसाब से हम वहां का सोल्यूशन निकालें, लोगों के जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का डेमोक्रेटिक सोल्यूशन निकालें। दूसरा है डेवलपमेंट। अगर हम वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इमेज बहुत पॉजिटिव होगा एंड देन लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ रिलेट कर पाएंगे, उसकी बातों को मानेंगे। थर्ड, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर होना चाहिए वहां पे।
फोर्थ, डायलॉग, हमें उनके साथ बात करना है कि देखो आपका डिमांड क्या है, आप लोग आर्म्स को छोड़ो, आप लोग फाइटिंग को छोड़ो और आप हमारे साथ फाइट करो, सॉरी हमारे साथ टॉक करो। देन डिप्लोमेसी, चाइना के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ हमें बात करना है। जो भी ग्रुप है जो इंडिया के अगेंस्ट वर्क कर रहा है और इस कंट्री में लोकेटेड है, हमें उसको क्रैक डाउन करना है फोर्सफुली। देन आफ्सा को रिपेल करना है, हमें लोकल पुलिस को यूज करना चाहिए। कभी भी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए आर्मी डिफेंस फोर्सेस को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी गलत करते हैं डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक्यूजेशन आता है। इंटेलिजेंस नेटवर्क यूज करना चाहिए कि कहाँ से इनका फंडिंग आ रहा है, कहाँ से इनका आर्म्स आ रहा है, कौन इनको सपोर्ट कर रहा है, लोकल सपोर्ट कितना है, और बेस्ड ऑन वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट हम एक्शन लें। नाउ नॉर्थ ईस्ट का रिलेशन इंडिया के दूसरे पार्ट के साथ कैसा है? तो जब इंडिया के दूसरे पार्ट्स में नॉर्थ ईस्टर्न जाते हैं तो अनफॉर्चुनेटली उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको एब्यूज किया जाता है, फिजिकल एब्यूज, वर्बल एब्यूज, इवन सेक्सुअल एब्यूज, और उनको आइसोलेट किया जाता है। उनके साथ कोई बात नहीं करता, उनके साथ कोई रिलेट नहीं करता। कहीं पे घर रेंट पे लेने जाते हैं तो कोई उनको घर नहीं देता, बिकॉज उनके अगेंस्ट बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन है मार्केट में। तो ये एक प्रिजुडाइज डेवलप करता है। डिस्क्रिमिनेशन को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? तो फर्स्ट, प्रॉपर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। जैसे हमारे पास हाफ इंफॉर्मेशन होता है और बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन हम कंक्लूजन निकालते हैं, तो हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन का डिसेमिनेशन करना चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न के रिगार्डिंग। हमारे हिस्ट्री के टेक्स्ट बुक में, स्कूल कॉलेज के सिलेबस में नॉर्थ ईस्ट का भी इंफॉर्मेशन इंक्लूड हो। जैसे आप कितने लोग जो हाईली एजुकेटेड होते हैं उनको आप कहोगे कि नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट्स का आप नाम दो, तो वो नाम भी इवन नहीं बोल पाएंगे, और उनको कैपिटल बोलो तो मे बी वो कैपिटल भी उनको नहीं पता होगा। तो ये एक इग्नोरेंस है नॉर्थ ईस्ट को लेके। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि कोई अगर नॉर्थ ईस्टर्न के साथ डिस्क्रिमिनेट करता है, कोई अगर नॉर्थ ईस्टर्न को एब्यूज करता है, वो उसके ह्यूमन राइट को वायलेट करता है, तो उसको प्रॉपर पनिशमेंट मिलना चाहिए। अभी पुलिस न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है, कोर्ट में केस जाता है तो 20-20 साल तक पेंडिंग चलता रहता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और कोई भी किसी के साथ रेशियल एब्यूज करो तो उसको हमें हेट क्राइम के अंदर देखना चाहिए, उसको हमें नॉर्मल क्राइम में नहीं देखना चाहिए। देन नॉर्थ ईस्टर्न का इंडिया के दूसरे पार्ट्स के साथ कांटेक्ट इंक्रीज करना चाहिए, सो दैट हम नॉर्थ ईस्ट को बेटर वे में समझ पाए, वहां के लोगों को बेटर वे में समझ पाए। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड नागा पीस अकॉर्ड। इसमें कुछ डाउट है देन यू कैन आस्क।